Hi, this is Ishan from RevSportz and welcome to Teeing Off with RevSportz. I have S. Kanan joining Bharat Ramraj and Debashish Sen. An interesting match yesterday, SRH versus the Punjab Kings. Karan, मैं आपसे पहले पूछूंगा SRH team ने they managed winning this game by only 2 runs. It was a fascinating match क्योंकि end moment तक ऐसा लग रहा था कि SRH शायद से जीत जाएगी. But then again, Shashank Singh and Ashutosh came to the party and almost got Punjab Kings that victory. Your first thoughts on that game yesterday? वो कहते हैं अंग्रेजी में सो नियर येट सो फार, ये एक वही किस्सा था। आई मीन सो क्लोज। बट जिन लोगों को आईपीएल से मोहब्बत है, जिन लोगों को आईपीएल से प्रेम है, वो क्लोज मैचेस को बहुत एंजॉय करते हैं। जरूरी नहीं है कि हर एक मैच 220 के ऊपर जाए। बहुत कुछ देखने को मिला इस मैच में, हार भी हुआ, जीत भी हुआ, बट ओवरऑल अगर आप देखें इस मैच में काफी कुछ मिला। खासकर अर्शदीप फिर प्रभावित थे। एक यंग रेड्डी, ऑलमोस्ट अनहर्ड ऑफ, जिस तरह का उन्हें बैटिंग किया, एंड द सेम सम फेमिलियर नेम्स। तो अच्छा मैच था। एंड आई थिंक इस तरह का मैच से क्या होता है कि प्री प्रेडिक्शन था कि ये बोरिंग मैच हुआ, नहीं, ये बोरिंग था ही नहीं। दिस वाज ग्रिपिंग, सो टू से। यस, और देवाशीष, नीतीश कुमार रेड्डी अननोन प्लेयर जो मतलब कल ही पुट अप अ परफॉर्मेंस वेयर ही इज कम इनटू द स्पॉटलाइट, तो उसके लिए ये परफॉर्मेंस कितना इंपॉर्टेंट होगा एंड एसआरएच टीम के लिए हाउ इंपॉर्टेंट इज अ प्लेयर लाइक दिस बिकॉज नाउ दे हैव एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रूम अनदर यंगस्टर, अ bowling all-rounder or a batting all-rounder. So how important is it for the SRH team to groom him in the right way as well? See, it goes to prove कि IPL कितने talented player को unearth कर रहा है. Obviously, we have seen in this IPL and the likes of Mayank Yadav, means he leads the table along with Shashank Singh, Ashutosh Sharma, and now this youngster Nitish Kumar Reddy. And hats off to the way he performed. It was his batting effort that helped Sunrisers post that total. हालांकि जयदेव उनाद का तो मैच गवा ही बैठा था। 26 रन देके तो ऑलमोस्ट ही लॉस्ट अ मैच। शुक्र है जैसे कि कन्नन सर ने बोला कि पंजाब बीइंग पंजाब, मतलब सो क्लोज येट सो फार, वही दैट फिट्स परफेक्टली विद पंजाब किंग्स। क्योंकि देखिए इसीलिए वो कभी आईपीएल जीता नहीं, शायद इस बार भी वो ढूंढते रह जाएगा आईपीएल ट्रॉफी को। But then speaking about Nitish Reddy, what a find he has been. Hopefully कि उसको और मौका दिया जाए, क्योंकि देखिए ऐसे प्लेयर्स को जितने आप मौका देंगे तो they can express themselves to fantastic effort. बिल्कुल, I think मौके से ही प्लेयर आगे बढ़ सकता है। भरत, another thing that I noticed from the game yesterday was Pat Cummins' captaincy, always cool under pressure. Even in the final over where Jaidev Unadkat was, getting torn apart, you could see Pat Cummins running over to him, smiling and just telling him it's all right. So where does this calmness come from, and how do you think this helps this team? Because I think Pat Cummins has been a legendary captain for a while now, and do you think it's the captaincy that is making the difference for this HRH unit? Yeah, see, he's very experienced now. I think it comes from his experience, only experience of winning. Australia won World Cups under him. They have won a World Cup. They have that also in India, and then they have won the World Test Championship. They held England to a drawn series. Obviously, you can say one Test match was rained off, but still they held them to a drawn series in England. So I think experience it comes from experience of winning Test matches, winning ODIs, these games. So I think that is why he's very cool. Obviously, he's bowling well too, and that must add to his confidence. Sitting the deck hard and getting a lot of bounce. He's using those 2 bouncers rule really well. So all these things really must be helping him. One thing just wanted to add about Nitish Reddy. I don't think he's completely unknown because he's playing domestic cricket for 3-4 years. Once he dismissed Pujara, Bobo cleaned him up in first class cricket. So he's been doing rather well with the ball, not so much with the bat in first class cricket. And yesterday it was good to see him blossoming. Yes, I think it was great for all of us to see as well. Karan, Arshdeep के बारे में थोड़ा बात करते हैं। और Arshdeep was, he hadn't had the best of starts of the IPL, but कल के मैच में
बहुत ही अच्छी bowling performance. He in fact got 2 wickets up front, and those 2 wickets later, and like in the later end of the innings as well, which has gotten his team back into the game. So Arshdeep के बारे में क्या रहा है आपके? और this is what you need, right? Arshdeep Singh has been India's, one of India's upcoming fast bowlers who's done well. Thoda he went off the radar, but now he's back on track again. So I think the Punjab Kings will be happy with his performance. आपका सवाल थोड़ा लंबा था तो इसलिए मैं अपना जवाब छोटा रखूंगा, बट आई विल लिंक इट टू पैट कमिंस. आईपीएल में माना जाता है कि सिर्फ बल्लेबाज प्रभावित होते हैं, नहीं, बॉलर भी प्रभावित होते हैं. खासकर जब मैं अर्शदीप का आज बात करूंगा, मैं आई विल गो टू भरत ट्वीट्स यस्टरडे दैट यू आर स्विंगिंग द बॉल, यू आर स्विंगिंग द कुकाबरा बॉल. ऐसा लगता ही नहीं है कि ये स्विंग होता है, पर जो अर्शदीप ने दिखाया है स्विंग, ये नेचुरल स्विंग नहीं है, उन्होंने प्रोड्यूस किया है स्विंग. सो बहुत अच्छा लगा उनका स्विंग को देख के. मतलब वो कहते हैं हिंदी की भाषा में दिल्ली में, अरे यार ये तो बॉल घुमा रहा, बैट्समैन झेल नहीं पा रहा यार, इसको खड़ा ही नहीं हो पा रहा. दिस झेलना शब्द इज लाइक यू कांट फेस इट, इट इज टॉरिड. पेस टॉरिड नहीं था, मूवमेंट टॉरिड था. उन्होंने दिखाया कि बॉल घूम सकता है, आईपीएल में गर्मी में भी घूम सकता है बॉल. और आई थिंक जो सेलेक्टर्स का नजर है सब पे है, चाहे वो अर्शदीप हो, चाहे रेड्डी हो, युवा खिलाड़ी हो या सीनियर खिलाड़ी हो, रोहित शर्मा हो या विराट कोहली हो, शुभमन गिल हो या ऋषभ पंत हो, सबका नजर है. तो मैं सोचता हूं कि दिस इज व्हाई अर्शदीप इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज ही ब्रिंग्स इन वैरायटी. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हार जीत तो एक तरफ है, बट अगर आप बड़ी पिक्चर देखेंगे, द बिग पिक्चर एज जैसे वर्ल्ड कप, T20 सिलेक्शन, यहां पे अर्शदीप जरूर दावेदार होंगे. जरूर. देवाशी, would you like to add a point on Arshdeep? As when you have थोड़ा मैं बिल्कुल सहमत हूँ कन्नन सर से, बट मैं यही कहना चाहेंगे कि ऑब्वियसली इट ऑलवेज हेल्प्स व्हेन यू हैव अ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर इन द साइड. इट एड्स वैरायटी टू दैट बॉलिंग अटैक, और अर्शदीप ने कर दिखाया. हालांकि उनका उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा टिल द मैच अगेंस्ट पंजाब किंग्स, बट कल का जो परफॉर्मेंस, उनका जो प्रदर्शन रहा, इट विल गिव कॉन्फिडेंस टू हिम. और यही यही हमको चाहिए एज इंडियन फैंस, क्योंकि अगर ये जो प्लेयर्स है who will get picked for the Indian team, you want players to be on form rather than going for by names. हालांकि there will be some players who I don't want to name, but there will be players who will automatically pick themselves because being the star players. But then some players like Arshdeep, क्योंकि देखिए अभी मयंक यादव का चर्चा चल रहा है, बट देन मयंक यादव का सबसे बिगेस्ट कंसर्न है कि वो इंजरी प्रोन है, क्योंकि जिस तरह से उसका साइड स्ट्रेन हुआ, he has to miss 2 matches now. और तो you want people to be on that in that side जिनका फॉर्म है और जो फिट है, क्योंकि you don't want this to happen कि गया एक मैच में बॉलिंग किया और अगला मैच में ही इंजरी हो गया. You don't want that to happen for a tournament like the World Cup. So I think it augurs well for the Indian team. Yes. देवाशीष दादा, बता तो दो आपके जो 4-5 निश्चित प्लेयर है वो तो बता दो, छुपा क्यों रहे हो? ऑन एयर है, अच्छा लगेगा लोगों को सुन के. हाँ ठीक है ड्रीम लेवल में कम से कम ड्रीम 4 था, बता दो प्लीज. अरे ड्रीम 4 नहीं, ड्रीम 5, 6, 7 है, क्योंकि देखिए आप रोहित शर्मा इज ऑलरेडी द कैप्टन. रोहित शर्मा तो है ही टीम में. विराट कोहली, देयर शुडंट बी एनी डिबेट, क्योंकि विराट कोहली रहेगा ही. सूर्य कुमार यादव रहेगा, हार्दिक पांड्या रहेगा, जसप्रीत बुमराह रहेगा. ये 5 तो ऑटोमेटिक चॉइस है, तो इनमें तो कोई डाउट ही नहीं है एज फार एज आई एम कंसर्न. तो ये 5 तो रहेगा. अभी देखते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा डिलेमा होगा टू पिक द विकेट कीपर, क्योंकि काफी सारे कंपटीशन है, क्योंकि ऋषभ पंत है. हालांकि हमने रिपोर्ट देखा कि इन वन ऑफ द लीडिंग वेबसाइट्स की ऋषभ पंत इज ऑल सर्टेन, बट व्हाट हैपेंस बिकॉज इट्स स्टिल 4 matches, it's still early days in the IPL. What happens if he breaks down again? क्योंकि देखिए the rigors of IPL matches, तो and he will have stiff competition from someone like a Sanju Samson once again, जो अच्छा प्रदर्शन किया अभी तक. ईशान किशन, you cannot rule him out as well. हालांकि उसका कॉन्ट्रैक्ट से बाहर जरूर हो गया due to disciplinary reasons, but then ईशान किशन in this format is a good bet. जितेश शर्मा जो अफगानिस्तान सीरीज में थे आपका
तो काफी कंपटीशन है और फास्ट बॉलिंग को लिए भी काफी सारे कंपटीशन रहेगा। तो देखिए इट ऑल बॉइल्स डाउन टू अगला कुछ मैचेस में कैसा प्रदर्शन करता है द प्लेयर्स। I couldn't agree इसीलिए more, मैं Debash. समझता हूँ कि आप Yeah. सुपर सेलेक्टर हैं। सॉरी ईशान, मैंने इंटरप्ट किया, नहीं. बट मुझे पता है कि देवाशीष इन मामा सर जिनको हम प्यार से सर बुलाते हैं, मैं वो सुपर सेलेक्टर हैं, उनको आप बहुत कुछ पूछिए पता है, वो भारत बताना नहीं चाहते। मैं भारत did I do you disagree with me? मैंने जो 5 नाम लिया तो ये प्लेयर्स तो ऑटोमेटिक चॉइस है, इसमें तो मेरा डेफिनेटली आप Bharat, सिलेक्शन सभी का do क्या you है? सुपर disagree सेलेक्टर with any रहेंगे player there? हमेशा। Yeah, obviously he has taken up automatic choices. The one player I would want to go to for the T20 World Cup is Mayank Yadav. I think he's the kind of bowler who can really be a strike force. He's not just fast; he gets T-bounce. So bowler who combines 150 kilometers per hour and bounce. I think he would be one of the first names in my team sheet. Yeah, if he's fit. That's the only issue with him. Otherwise, I would have him. But otherwise, a lot of places they look automatic picks, as he already said. But wicketkeeper is something that one has to watch out for. Pant doesn't have a great T20I record, if you notice. He has had his struggles in T20 cricket. That's for India. Bowlers have tended to bowl well outside the off stump and made him try to hit through off, where his shot making is comparatively limited. So in T20 cricket, at least he has had his struggles. So that's for the selectors to decide. Obviously, Very if true. Pant is the man or someone else. Yes. करण, अभी हम T20 सिलेक्शन की बात कर रहे हैं. If you're on this topic, क्या यशस्वी जायसवाल को थोड़ा प्रेशर फील होगा अभी? You know, he's had a great cricket season, but unfortunately उसका IPL start hasn't been the best. So, you know, will he be feeling the pressure when they take on the Gujarat Titans tonight? देखिए ये अच्छा मैच होगा। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ गुड मैच बिकॉज जो बिल्डअप हुआ है, अच्छा बिल्डअप हुआ है। आप खासकर आप जायसवाल की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं उनको सिर्फ आप जज आईपीएल के परफॉर्मेंस में ना करें। हो सकता है कि इतना हाई एनर्जी टेस्ट सीरीज के बाद इंग्लैंड के विरुद्ध जहां उन्होंने कमाल दिखाया, उसके पहले लास्ट ईयर उन्होंने डेब्यू किया वेस्ट इंडीज में, वहां भी अच्छे। तो आप वो कहते हैं अंग्रेजी में फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। तो मैं समझता हूँ कि ये क्लासी प्लेयर है, इनमें क्लास है, ये जल्दी अपना प्रदर्शन दिखाएंगे। अभी 3rd वीक ही है आईपीएल का, वो कहते हैं पिक्चर अभी बाकी है, अभी काफी लंबा टाइम है। आई एम श्योर ही विल डू वेल। टीम अच्छा कर रहा है तो प्रेशर नहीं है, मैं इसको प्रेशर नहीं कहूंगा, प्रेशर तो हर एक के ऊपर है। मतलब इवन पैट कमिंस एज अ बॉलिंग कैप्टन, लोग कहते हैं कि एक बॉलर को कैप्टन नहीं होना चाहिए, कपिल देव भी बॉलर ही थे, कैप्टन थे। तो आई थिंक ही विल प्ले वेल, ही विल प्ले फ्रीली, एंड इवन फॉर दैट मैटर इवन शुभमन गिल लगेगा कि प्रेशर पे है, बट ये तो दे विल हैव टू हैंडल इट। मात्र आईपीएल के प्रदर्शन पे अगन चायर करता टीम चुनेंगे, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं होगा। Devashish, similar thoughts on Jaiswal? थोड़ा सा प्रेशर तो होगा, but I would like to differ a bit with Kannan sir. Sir, Okay. you have to go with IPL form. If you are to pick the side for the World Cup, you have to go with the form of IPL, not just how you performed in Test cricket. Means obviously it has to be the form, current form, and the fitness. Fitness and form will be paramount before picking up a player in that फिर तो हार्दिक पांड्या कहाँ से टीम में आएंगे, आप बताइए मुझे। हाँ ठीक है, यस, बट देन सर इसमें तो डिबेट चलता ही रहेगा, इसमें तो खत्म ही नहीं होगा। तो फिर स्ट्राइक रेट को लेके केएल राहुल का स्ट्राइक रेट देख लीजिए, विराट कोहली का स्ट्राइक रेट देख लीजिए, श्रेयस अय्यर का स्ट्राइक रेट है। तो इनको तो फिर सिलेक्शन पे ही आना नहीं है। अगर स्ट्राइक रेट इज द बेंचमार्क, तो इन सब प्लेयर्स का जो प्रदर्शन रहा है अभी तक आईपीएल में, तो बट देन हैविंग सेड दैट, यशस्वी जायसवाल विल डेफिनेटली फील द प्रेशर, क्योंकि उनका हाई स्कोर अभी सिर्फ 24 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि 24 है उनका हाई स्कोर अभी। ही हैज नॉट क्लिक्ड एट ऑल, बट देन डेफिनेटली कि शुभमन गिल, जैसे आपने कहा कि शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल is definitely being thought about as the openers along with Rohit Sharma, तो automatic choice है। तो you may never know, Virat Kohli might go in at bat at number 3. So yes, definitely pressure तो इस format में pressure तो सबके पास ही होता है, but then as professional cricketers you need to soak in the pressure.
Bilkul, bilkul. Bharat, I'll ask you this question as well. If Virat Kohli is in that World Cup squad, would you see him opening, or do you think would it be Yashasvi Jaiswal? Oh, you put me on the spot there. uh, I have to think about it. Maybe Kohli will bat at 3. But if you ask me, I would think of him opening because I think he's at his best against the new ball. But I think Kohli would bat at number 3 in that batting order. Going All by right. how India is not a side that is very flexible. They go as per what has happened in the past. So I don't think they will change it in terms of how they went with top 3 in the 2022 T20 World Cup. I think it will be kind of similar. I'm not saying KL Rahul will be there, but in terms of how Kohli will fit in, I think he might play at number 3. No, Just I want to think add also, one point about Hardik yeah. Pandya. I think one point with Hardik Pandya is I guess selectors feel that he can bowl 2-3 overs. They can get 2-3 overs out of him, which might not be the case with someone like Shivam Dubey. Obviously, Shivam has his strengths. I think he's a better hitter than Hardik Pandya now, going by how he has played. Not necessarily his fast bowling, but I think on an overall basis, he's a better hitter than Hardik Pandya in 2024. But Hardik Pandya, I think, will give you 2-3 overs, consistently Yes. 2-3 overs. I guess that is why selectors want him in the side. Yes. No, you're right, but I think we can all speculate as much as we want, but the IPL, there's still a lot left to play. And I think with time, we'll get a better understanding of that playing 11. Moving on to badminton, Kanan, Malvika Bansod won both of her matches to qualify for the women's singles main draw. So, आपकी क्या राय है उसके बारे में? And how do you think she's going to continue to grow? I think बहुत अच्छा प्रदर्शन है. मतलब ओलंपिक्स की तैयारी में हम नाम लेते हैं सिंधु का, लक्ष्य सेन का, प्रणय का, and of course Sachi in doubles. But हमें आगे भी देखना है. We have to look at the future. You know, she's a very promising player, young player है, और ये जो अनुभव है बहुत महत्वपूर्ण अनुभव है. और ये चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करना, मैं मानता हूँ उनका भी उनका रैंकिंग नीचे है, 50 के आसपास है अप्रोक्सीमेटली. बट यहाँ 2 जो जीत दर्ज किया है और आगे जो मैच खेलेंगे ये अच्छा रहेगा बहुत आगे वाले समय में, क्योंकि पीवी सिंधु 2 ओलंपिक मेडल जीत चुकी है. 3रा मेडल का अनुमान है. हमारा दिल चाहता है कि पीवी सिंधु एक और मेडल जीते. बट क्या आप पीवी सिंधु के ऊपर ही डिपेंड करेंगे? क्या नहीं, आपको आगे देखना है. पेरिस ओलंपिक्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप देखेंगे एशियन गेम्स है जापान में. और अब जो लेटेस्ट न्यूज़ चल रहा है कि कॉमनवेल्थ गेम्स भी दोबारा जान आ गया है. कॉमनवेल्थ गेम्स में शायद अफ्रीका मेजबानी करेगा. आई डोंट नो वेदर बैडमिंटन विल बी पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स प्रोग्राम और नॉट. बट भविष्य को नज़र में रखते हुए मालविका जैसे प्लेयर, अनमोल खराब जैसे प्लेयर, ये बड़े इंपॉर्टेंट होंगे और इनको बैक करना चाहिए, इनको हाईलाइट करना चाहिए, बिकॉज दे आर द फ्यूचर. जैसे कि अब हम विराट कोहली और रोहित शर्मा का बात करें, हमने चर्चा किया, रेड्डी के बारे में चर्चा किया. वी आर डिस्कसिंग यंगस्टर्स. तो हर स्पोर्ट में आपको जो युवा पीढ़ी है, जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, युवा पीढ़ी, यंग जनरेशन, गौर से देखिए. आने वाले समय में यही आपके लिए मेडल लाएंगे, यही भारत के गर्व और गौरव होगा. Thank you, Karan. I think that's beautifully put. As we all know, there's an interesting movie or inspiring movie, Maidan, that's releasing. So we're going to see a small clipper of it, a small snippet, and we're going to come back and have a discussion on this. Enjoy. इस टीम को भारत की सर्वकालिक महान टीम कहा जाता है. ऑल टाइम ग्रेट, एवरेज आयु थी सिर्फ 24 साल. সবাই আমরা একসঙ্গে করেছিলাম জিতবো. हम ना सबसे बड़े मुल्क है या सबसे अमीर. आधी दुनिया हमें जानती भी नहीं है. फुटबॉल हमारी पहचान बना सकती है. क्योंकि सारी दुनिया फुटबॉल खेलती है. इसलिए अगले 10 साल तक इंडिया को एक वर्ल्ड क्लास टीम बनाने की बात याद रखनी चाहिए. Trust me, this is just the beginning of the golden era of Indian football. अपने शहर आ गए.
सौत है हमारी आपकी ये फुटबॉल। बन गई आपकी टीम? रविंद्र जी, मैं ऐसे प्लेयर्स ढूंढ रहा हूँ जिन्हें मैं किसी भी पोजीशन पे खिला सकूं, लेकिन हमें गोलकीपर थोड़ा लंबा चाहिए। अगर आप लोगों को एशियन गेम्स में जाना है तो अपने गेम का लेवल ऊंचा करना होगा। मिस्टर S.A. रहीम, मैंने सुना कि सिकंदराबाद का झोपड़पट्टी से किसी लड़का को उठा लिया है। 19 साल का एक लोकल टूर्नामेंट खेलने वाला लड़का को स्ट्राइकर का पोजीशन पे। किसी को भी आपका जीतने का उम्मीद नहीं है। मुझे लगता है कि हम दुनिया की कोई भी टीम को हरा सकते हैं, और हार के वापस आ गए तो मैं दोबारा कभी किसी टीम को कोच नहीं करूंगा। आपके सपने की कीमत आपने अकेले नहीं चुकाई है, ये हम सबका सपना था। सरकार को तुमसे मेडल की कोई उम्मीद नहीं। जीत पाओगे? सोच एक, समझ एक, दिल एक। इसलिए आज मैदान में उतरना क्या रहा, लेकिन दिखला। एक How challenging was it, and how proud are you of what you pulled off? It was challenging. When we started shooting the film, it was not challenging. We were going in a good speed. But then after COVID was announced and lockdown came, and then at that time I think we got into major challenges. But you know, not only us, we have gone through the COVID, but the whole world has gone through it. Cyclone came on our set, and all those things happened. But one thing which was there in all of our mind was that, you know, we are making a film, we are making a story which will be in front of everybody. People who have no idea about football, because football is not our primary game in India, unfortunately. But the story had so much of emotion and, you know, resilience that. Wow, I think I had goosebumps. You know, I think it's important to make such films. I would like to know all of your opinions on this. Devashish, पहले मैं आपसे start करूँगा. Why is it important to make a film like Maidan? Because I'm sure all of us were seeing this trailer and all of us felt something. It touched your heart. So the stage is yours and go for it. Obviously, it was a goosebump moment when watching the movie last night, and the link was shared in our group, and it was a 1983 moment for Indian football. Means if you put it, means obviously उसको आगे लेके नहीं जा पाए हम लोग ने, जो सक्सेस हम लोग को दिया, पीके, चुनी, बलराम, थंगराज, जर्नल सिंह ने, जो और सबसे ऊपर रहीम साहब, उनका जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन फुटबॉल, क्योंकि 1950 से लेके 1962 that has to be the golden era of Indian football. Undoubtedly it has to be the golden era of Indian football, क्योंकि 1952 में जब हेलसिंकी ओलंपिक्स में हम लोग ने यूगोस्लाविया के साथ जो खराब प्रदर्शन किया, उसके बाद उभर के आना, द वे जिस तरह से डायरेक्टर ने उस पर फोकस किया, द सक्सेस, जो फुटबॉल का जो सीक्वेंस है, मैच का जो सीक्वेंस है ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ इज वेरी कैप्टिवेटिंग फॉर मी. The best moment was the second half of the film, क्योंकि जो फुटबॉल का सीक्वेंस है, it was it is a well made film by Amit Sharma, and these are all household names in Indian football. You talk about PK, Chuni, and they would have loved to watch the movie, but unfortunately they are no more. So I think I got very emotional. I think put it rightly. Yes. करण, मैं जानता हूँ कि आप भी बहुत ही बड़े स्पोर्ट्स फिल्म फैन हो, and you know, I'm sure this movie
and the trailer must have touched you. So, what are your thoughts on this, and why do you think such movies should be made more often? गुस्ताखी माफ, मैं एक बॉलीवुड फैन हूँ। पहले मैंने बहुत बॉलीवुड पिक्चरें देखी हैं, स्कूल में पैसे भी नहीं होते थे, पिक्चरें देखी हैं, चाहे वो राजेश खन्ना हो या अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो या इस मूवी का सितारा सुपरस्टार देवगन साहब को मैंने सिर्फ देखा है ओनली इन एंग्री रोल्स, बट ये एक नया रोल है और ये रोल खूब अदा किया है उन्होंने। स्पोर्ट्स पिक्चर का सवाल जहां तक है, हमने कई सारी स्पोर्ट्स पिक्चर देखी है। 83 भी पिक्चर बना है, दंगल भी बना है, शाहरुख खान का चक दे इंडिया भी बना है, इतने सारे पिक्चर्स हैं। इन पिक्चरों को देखिए, एंजॉय द मोमेंट, एंजॉय द रोमांस। आज इंडियन फुटबॉल जूझ रहा है, गालियां पड़ रही हैं टीम को, कोच साहब को भी गालियां पड़ रही हैं, बट वी हैव टू गो बैक टू हिस्ट्री। मैदान जिसको बोलते हैं ना, कलकत्ता में मैदान बोलते हैं उसको, तो फुटबॉल सिर्फ मैदान में नहीं है, फुटबॉल इज देयर एवरीवेयर। फुटबॉल हमारे दिल में, हमारे जहन में है। फुटबॉल ऑफर हम भी खेल सकते हैं। एक बॉल को लीजिए, लात मारिए, कोई पैड वैड ग्लव्स कुछ नहीं चाहिए। लोग फुटबॉल खेलते थे जब जूता भी नहीं होता था, अब तो स्टड्स मैंडेटरी हो गया है, आपको शिन गार्ड भी पहनना है, आप यू कैन नॉट रिस्क इट। और इसमें भी इनोवेशंस हुए, 11 नहीं मतलब 7 असाइड, ये वो एक्सपेरिमेंटेशन, शॉर्टन फॉर्मेट, छोटा ग्राउंड भी हो रहा है। तो ये पिक्चर को आप क्रिटिकली ना देखें। जो फिल्म क्रिटिक है वो इसको दूसरे नजर से देखेगा, जो खेल प्रेमी है इसको खेल के नजर से देखेगा। क्या ये पिक्चर गूंजता है? क्या आपको वो पल, वो क्षण, वो लम्हे दोबारा याद दिलाता है ही नहीं, ताकि दोबारा भारत फुटबॉल मैप में एक अपना जगह बनाए। मतलब अभी भी वी आर टॉकिंग अबाउट द ईयर ऑफ यूरो फुटबॉल, बट अगर आप पिछले साल का एशियन गेम्स में भी जाए, टीम को भेजना नहीं चाहिए था, टीम को भेजा गया, ठीक है, मैं मानता हूं प्रदर्शन खराब नहीं रहा है। क्या एशियन गेम्स एक सिर्फ ट्रायल ग्राउंड है? नहीं है। तो ये पिक्चर जो है इसको होलिस्टिकली देखिए, इसमें भी सिलेक्शन मैटर्स है, जो पैसा नहीं दिया टीम को भेजने के लिए उसका भी जिक्र है। एंड मेन इज अबाउट अ कोच। नॉर्मली जो पिक्चरें बनती है वो हीरो पे बनता है। हीरो कौन है? हीरो प्लेयर है, हीरो कोच कभी नहीं है। राहुल द्रविड़ के नेतृत्व में अगर टीम 2-3 सीरीज हार जाएगी तो सैक राहुल। तो यहाँ पे एक कोच का जो हाईलाइट किया है, जो अब हमारे बीच में नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ईद का माहौल है, आजकल 3 दिन चलता रहेगा ईद। केरला में ईद है, बंगाल में ईद है, ऑल ओवर इंडिया ईद है। उस टाइम पे ऐसा एक पिक्चर बनना, ऐसे महान आदमी पे, टाइमिंग इज सुपर। मैं समझता हूँ ये पिक्चर सब देखेंगे, उसको जो पसंद करेगा, स्पोर्ट्समैन जरूर पसंद करेगा। और हम यहाँ स्पोर्ट्स के लिए बैठे हैं, हम चारों। Wow, Karan, I think all of us have been, touched by those words of yours, and I think the audience as well, listening to this, will be inspired to go and see this film. Bharat, your final thoughts on the film? Yeah, see it as a sports connoisseur, as Kanan sir said. See it as a sports connoisseur. See whether it brings back those old memories. It looks like a touching. It was a touching film, so that is why you have to see this. Even if you're not a football fan, okay, there might be a lot of them in India who might not be football fans, but still see it as from a sports perspective. I think it's a great film. Hopefully, it will do well. Yes, hopefully it will do well. Thank you to all my guests for joining. Thank you to all our viewers. Have a great day ahead, and make sure you go see Maidan in the theaters today. Thank you, and see you tomorrow.